جنت کے پتے۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کی کھپکی بتا رہی تھی کہ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے بس اسے ہی بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے تم کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ اور نفیس سی بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا، کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سی ڈیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر رکھا اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا وہ، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سے کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پچھلی سائڈ پہ اترتا تھا، اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے پشت لگا کر چند گہری سانسیں لی۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد ہم کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی بالکنی کے دروازے کو منتظر سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے خالی برتن پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے سے کرتے پہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، متفکر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفتن دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چرچراہٹ کم سے کم ہو۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کی وجہ سے ایسے کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا، یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھی؟ وہ اب الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھیں، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، اس لیے ذرا دلچسپی سے پوچھا، ساتھ ہی الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے کپڑے اور تولیہ کندھے پہ ڈالے بات کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی؟ اس لیے وہ بھی میں نے کھا لیا۔ وہ جو کسی اور ہی جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا، مڑ کر تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ اس نے آرام سے سر ہلایا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ جہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔
ये तुम्हारे दादा क्या फिरौन के ज़माने के थे? वो मुंह बनाकर बोली। अभी तो गुजरा है उनका ज़माना, अभी भी वही रिवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या नॉस्टैल्जिया होता है कि शायद उनका ज़माना ज़्यादा अच्छा था। उसकी बात पे जहान ने अफसोस से सर झटका। अच्छा सुनो, मरियम खानम के किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स में से दाएं हाथ की तीसरी कैबिनेट को खोलोगी तो वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ निकाल लो मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह जहान, कल वो किसी के बारे में कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का था, कभी बगैर पूछे चीज़ नहीं लेता था। मैंने कब कहा बगैर पूछे लो? तुमने ये भी नहीं कहा कि पूछ लो। बोरक से जी नहीं भरा जो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो। वो खफकी से कहता बाथरूम चला गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसके जाने के बाद हया के लब्बों पे मुस्कुराहट उमड़ आई। साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढकी हुई प्लेट निकाली और फिर ऊपर वाली प्लेट उठाकर जहान का बोरक देखा, उसे दोबारा ढका और सामने मेज़ पे रखा। फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्ट इट का छोटा पैड निकाला। ऊपर सफ़े पे लिखा, तुम्हारे दिमाग से बोरक का जायका बहुत अच्छा है, और इस नोट पैड को फाड़ा और फिर ऊपर प्लेट पे चिपका दिया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जहाँ नीचे आया तो वो दोनों फर्शी नशिस्त वाले कमरे में बैठी थीं। उसे देखकर वो ज़रा सा मुस्कुराया, वही अपनायत भरी मुस्कुराहट। गालिबन बोरक उसे मिल गया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों थोड़ी देर बैठकर किसी काम का कहकर बाहर निकल गया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आईं तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर उधर ही आ गई। अबाया तो वो आदतन रोज़ ही धोती थी, तुर्की हो या पाकिस्तान। हिजाब का ये मतलब तो नहीं होता कि सफाई न रखी जाए, बल्कि उसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वो कभी भी गीले बालों पे स्कार्फ नहीं ओढ़ती थी, और भले अबाया से कपड़े ना नज़र आएं, मगर फिर भी वो इस्त्रीशुदा कपड़े पहनती और बाल ठीक से बनाकर ही स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? मेरा लोशन ख़त्म हो गया है। इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ। तुम शैम्पू डाल लो, वो भी ठीक रहेगा। उनकी हिदायत के मुताबिक उसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और हाथ से मिक्स कर दिया। मरियम खानम मशीन में कपड़े डाल रही थी। वो उनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, एक बात तो बताएं। पूछो, उन्होंने दौरान मसरूफ़ियत पूछा। जहान कहता है कि कुरान में पहेलियाँ होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान बजाते खुद पहेली नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और ये तो खुद कुरान भी बार बार कहता है। हाँ, तुम कह सकती हो कि कुरान में बहुत सारी पहेलियाँ हैं, मगर आंटी, कुरान पाक तो आसान बनाकर उतारा गया है ना, तो फिर क्या ज़रूरी है कि हम उसकी हर पहेली ढूंढें? नहीं, कुरान आसान बनाकर नहीं उतारा गया, उसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। वो अब मशीन का टाइमर लगा रही थी। लेकिन आंटी, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उसने कुरान को आसान बनाकर उतारा है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरान को यसीर बनाकर उतारा है, लेकिन आसान नहीं। यसीर का मतलब आसान नहीं होता। ये तो अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में उसका तर्जमा आसान कर दिया जाता है, वरना उसका मतलब आसान नहीं होता। यसर कहते हैं किसी चीज़ को तमाम ज़रूरी लवाजमात से आरास्ता करके उसे रेडी टू यूज़ बना देने को। मगर आंटी, आसान भी तो उसी चीज़ को कहते हैं। वो उलझी। नहीं बेटा, आसान कहते हैं पीस ऑफ केक को, यानी किसी को खाने के लिए केक का एक टुकड़ा दे देना। और यसीर का मतलब है कि किसी को अंडा, मैदा, घी, चीनी वगैरह और केक की रेसिपी देकर किचन में भेज देना। सब उसके हाथ में होगा, मगर केक उसे खुद बनाना होगा। अब ये उस पर मुनसर है कि वो केक बनाता है या इन अशिया से आमलेट और मैदे की रोटी बनाकर असल मकसद से हट जाता है। इंसान के लिए वही होता है बेटा, जिसकी वो कोशिश करता है। मशीन ज़ोरदार आवाज़ के साथ चल रही थी। उसके अबाया को भिगोए भी काफ़ी देर होने को आई थी, सो उसने बाल्टी से अपना गीला अबाया और स्कार्फ निकाला और सहन के कोने में लगे सिंक पे ले आई। आंटी, क्या सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नल खोलकर दोनों मुट्ठियों से स्याह हरीर को भींचती वो उससे झाग निकाल रही थी। पानी वटावट की आवाज़ के साथ नल के पाइप से नीचे जा रहा था। हाँ,
क्यों नहीं, तो फिर वो पीछे क्यों आते हैं? सिंक पे झुके खड़ी कपड़ा भींच भींच कर उसके हाथ दुखने लगे थे। झाग अब ज़रा कम हुई थी, यानी उसकी आंटी की तरफ पुश थी। वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुन सकती थी, यानी कि वो बार बार हमें दिखाई क्यों देते हैं। उसने गीले अबाए को गठरी की सूरत बनाकर दोनों हाथों से निचोड़ा। पानी की धारें बहने लगी। तो अच्छा है ना, ऐसे इंसान बार बार माफ़ी मांगता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि जब उसके वो गुनाह बदल कर नेकी लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारा ताक़ुब ख़त्म क्यों नहीं कर देते। उसके हाथ में अब ठंडा सा अबाया रह गया था। हरीर भी खूब कपड़ा था। उसको गड़े में डाल दो तो एक शिकन नहीं पड़ती, गोल मोल करके रख दो जाल है जो चमक मांद पड़े। सच्चे दिल से तौबा करो तो गुनाह नहीं आते पीछे। उसने तार पे अबाया फैलाया और फिर उनके सामने जाकर खड़ी हुई। वो अब मशीन से गीले कपड़े निकाल रही थी। कनखियों से उसे अपना अबाया हवा में फड़फड़ाता दिखाई दे रहा था। मगर वो कोफ्त देते हैं ना, जैसे ये अबाया मुझे कोफ्त दे रहा है। लगता है अभी हवा का तेज़ झोंका आएगा और ये उड़कर मेरे सारे मंजर पे जाकर इसको तारीक कर देगा। इस बात पे मरियम खानम मुस्कुराई और टोकरी में से एक क्लिप उठाकर उसके अबाए पे लगा दिया। हया पल भर को बिल्कुल ठहर गई। अब नहीं उड़ेगा, भले कितना ही फड़फड़ा ले। दुआ भी एक क्लिप की तरह होती है और ये गुनाह इसलिए यूँ फड़फड़ाते हैं ताकि तुम ये याद रखो कि अगर तुम दोबारा इस रास्ते की तरफ गई तो ये क्लिप टूट जाएगा और कपड़ा उड़कर सब पे छा जाएगा। ज़माना इस्लाम में आने के बाद जाहिलियत के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर गलत रास्ते की तरफ जाने की सूरत में वो पिछले गुनाह ताज़ा हो जाते हैं और इंसान को उस पुराने ज़माने जाहिलियत का भी हिसाब देना पड़ता है। तो गुनाह इसलिए हमें दिखाए जाते हैं ताकि हम डरते रहें और दोबारा उसकी तरफ ना जाएं। हाँ, और ताकि हम खौफ और उम्मीद के दरमियान अल्लाह ताला को पुकारते रहें। इसी को कहते हैं ईमान। मशीन का ड्रायर बजर बजाने लगा था। आंटी उसकी तरफ पलट गई। वो बस उनकी पुश्त को देखेगी। तुर्की के खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें। कैलिस का आसमान स्याह बादलों से ढका था। आज रात उस पे चांदनी नहीं उतरी थी। मकई के खेत सुनसान पड़े थे। हर सू जैतून की रसीली महक और बारिश से पहले की मिट्टी की खुशबू फैली थी। खामोश तारीख रात। जहान ने ब्रेक पे जोर से पाँव रखा। गाड़ी झटके से रुकी। हया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सब्ज टी शर्ट, नीली जीन्स और माथे पे बिखरे बाल। वो कुछ सोचते हुए विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। क्या हमें इससे आगे पैदल चलना है? उसके सवाल पे जहान का इर्तिकाज़ टूटा। उसने चौंक कर हया की तरफ देखा और फिर सर हिलाया। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। तुम वापस इसी पे आना और इसे खानम के घर छोड़ देना। उसका मालिक वहीं से आकर ले जाएगा। अपनी तरफ का लाभ खोलते हुए वो कहते कहते रुका। आर यू श्योर? तुम मेरे साथ वहाँ तक आना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी मजाक की हिस्स इतनी बुरी है कि मैं ऐसी बात मजाक में कहूँगी? वो खफकी से कहती बाहर निकल आई। उसने जहान की हिदायत के मुताबिक अबाया नहीं लिया था ताकि शामी औरतों जैसी ना लगे, और कैलिस की मकामी औरतों की तरह घुटनों से नीचे कुर्ता, तुर्क फ्रॉक, ट्राउज़र और सर पे खानम का सफ़ेद फूलदार स्कार्फ यूं ले रखा था कि स्कार्फ माथे पे लपेट कर उसकी दोनों तिकोनों की गिरा गर्दन के पीछे लगाई और फिर उनको कंधों पे सामने डाल दिया, बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह। रात के अंधेरे में भी उसका चेहरा दमक रहा था। मैं पहले चलूँगा जब इस झाड़ तक पहुँच जाऊँ, उसने झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तब तुम चलना ताकि हमारे दरमियान फासला रहे। हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो खामोशी से आगे चला गया। हया ने पलट कर पीछे देखा। वहाँ दूर दूर कुछ बत्तियाँ दिखाई देती थीं। उसने वापस आगे देखा जहाँ वो जा रहा था। वहाँ हर तरफ अंधेरा था, पीछे रोशनी, आगे अंधेरा, इलामती इम्तिजाज।